Good morning, bachcho. I hope you all are well. So, student, today we are going to start our chapter number 3, that is advanced feature of MS Excel. Student, in MS Excel we have seen that how we need to manage the data in tabular format. So today we are just that going to start to represent the data in various format like charts, graphs, pictures, etc. Okay. In last chapter we organize the data. Here we are representing the data. Okay, students. So to represent the data, first we are using charts. So the question is, sir, why we are using chart to represent the data? Actually, students, chart is giving the very effective way to display the data in pictorial format. Okay, chart makes it easier to draw the comparison and analyze the growth, relationship and trends of the data or their ranges. Charts provides us pictorial representation through which we can easily understand and compare the data. Whenever we are working over to the charts, then there are some points we need to take considered. Here I am showing them. Let I am taking a chart. Here you are seeing in this picture that the first is chart area. ये जो आपको box दिख रहा है, this is called chart area. The second is chart title. Chart title is the title of chart. For that you are making the chart. आपका जो data है chart पे वो क्या represent कर रहा है. Okay. नेक्स्ट इज कैटेगरी एक्सेस. कैटेगरी एक्सेस बच्चों हमें ये बताता है कि आपका जो चार्ट है बच्चों, कैटेगरी एक्सेस ये बताता है कि आपके एक्स एक्सेस पे कौन सा आपने डेटा लिया है. सेकंड इज वैल्यू एक्सेस, जितनी भी वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे शो होती है. डेटा सीरीजेस इज रिलेटेड टू द सेट ऑफ डेटा वैल्यूज जो आपने यहाँ पे शो करी है. एक्सेस टाइटल्स आप डाल सकते हैं. प्लॉट एरिया इज द एरिया वेयर एवर योर प्लॉट इज अरेंज्ड. लीजेंड्स आप शो करते हैं इसके लिए ताकि आपको ये पता हो कि कौन से पर्टिकुलर जो बार है पर्टिकुलर चार्ट पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और किस पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड ग्रिड लाइंस बच्चों चार्ट की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है. कई बार हम लोगों को चार्ट को रीड करना होता है तो इन चार्ट्स को हॉरिजॉन्टल वैल्यू एक्सेस पे देखने के लिए हम इन ग्रिड लाइंस का यूज़ करते हैं. ओके बच्चों, so these are the simple basic elements of chart which I am discussing here. Now the next type of charts which is most commonly available in MS Excel, that is column chart. You know, column chart are also known as vertical bar chart. Now next is bar chart. Bar chart is here shown, but the bar chart is maybe vertical or horizontal. So this is in the picture horizontal bar chart and this is vertical bar chart. The next is line chart, next is pie chart, and the third most important, that is donut chart. In donut chart a circle is to be made in pictorial order and the things are just shown here in the segments. Okay, एक particular sectors और segments की form में आपको यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होता है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हाउ वी नीड टू क्रिएट अ चार्ट. सो स्टूडेंट, आई एम ओपनिंग द MS Excel. Here I have mentioned some data, okay, for which I need to prepare the chart. So first you just enter the particular data for which you want to make the chart. Like I would like to just display a particular data like names of my student, some of the student like Shyam, Ajay, Sanjay, Setu and Meena. मैं इन पांचों बच्चों के जो नेम्स है बच्चों उनके कोरस्पॉन्डिंग इनके आउट ऑफ 100 मार्क्स यहाँ फिल कर देता हूँ. इफ़ आई वुड लाइक टू डिस्प्ले द चार्ट ऑफ दिस डेटा, then simply what I need to do, simply I need to select this table like this. Now press on insert and choose the chart option. Okay, charts में आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे कई सारे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट सभी दे रखे हैं. So just press on column chart. After pressing on column chart, it will ask you what type of column chart would you like 2D columns, 3D columns, cylindrical, conical shape, pyramid shape. तो मैं 1 by 1 दिखाता हूँ बच्चों आपको. जैसे सपोज करो मैंने 2D कॉलम पे क्लिक कर दिया तो इस तरह से आपका ये 2D चार्ट डिस्प्ले हो रहा है. ओके बच्चों, बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो पर्टिकुलर मार्क्स हैं जिसका ये डेटा शो कर रहा है ये आपका टाइटल बन गया है. ठीक है, आप चाहें तो इस पर्टिकुलर टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं बाय प्रेसिंग डबल क्लिक ऑन इट. जैसे मैं चाहता हूँ मार्क्स ऑफ
स्टूडेंट्स विल बी द टाइटल ऑफ चार्ट। तो मैंने यहाँ पे चार्ट टाइटल डाल दिया बच्चों। आप चाहें तो यहाँ पे चाहे बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्लू कलर से बार शो हो रहे हैं, आप इस तरह से मल्टीपल भी शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कई सारे स्टाइल्स दिए हैं, लेट आई एम चूजिंग दिस स्टाइल। तो ये बैकग्राउंड में आपका बड़ा सुंदर सा फील्ड बैकग्राउंड आ जाएगा बैक कलर से। और जो आपका चार्ट है प्लॉट एरिया, इसके अंदर जो चार्ट है वो आपको 3D, थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे रहा है बच्चों, है ना। तो एंड मार्क्स, ये आपका लेजेंड है जो शो कर रहा है कि रेड कलर के जो बार्स हैं इट इज शोइंग द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ओके, एंड द ग्रेड लाइन इज ऑल्सो भी देयर। आप इस चार्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं बच्चों, और पर्टिकुलर डेटा अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका बार भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके, आप पर्टिकुलर चार्ट के टाइप को यहाँ से चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर टाइप का चार्ट, जैसे मैंने यहाँ पे अभी रेक्टेंगुलर बार चार्ट यूज़ कर रखा था बच्चों। आप चाहें तो यहाँ पे जैसे कॉलम चार्ट को दैट सिलेंड्रिकल चार्ट वगैरह डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट चूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक, आपको दोबारा से चार्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से चार्ट चूज़ कर लेंगे तो आपका वो चार्ट ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, इस तरह से। ओके, यहाँ से आप फिर से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट लेआउट्स में। ओके, वन सेकेंड। सो दिस इज सिंपली द चार्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, आप स्विच भी कर सकते हैं बच्चों रो और कॉलम्स को यहाँ से। जैसे सपोज करो आपने स्विच कर लिया तो आपका जो डेटा है वो सिलेंड्रिकली कॉलमनर मेथड की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज सिंपली सेलेक्ट द डेटा से आप यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्विक लेआउट अगर आपको चेंज करना है पर्टिकुलर चार्ट का तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, और आप अपने इस चार्ट को पर्टिकुलरली किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव और फॉर्मेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट करना है आपको चार्ट एरिया, जस्ट राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की स्टाइल, यू कैन चेंज एनीथिंग हेयर। ओके, शेडो इफेक्ट डालना है आपको, ट्रांसपेरेंसी शो करनी है, 3D फॉर्मेट शो करने हैं चार्ट के, तो ये सब यहाँ से कर सकते हैं आप। ओके, सो दिस इज़ योर चार्ट स्टूडेंट्स। आई हैव गिवन यू a simple practical in your Google Classroom, so you just do that. Okay, thank you.